چلو آپ تو سکون ہے، اب تو نہیں اس کی وہ ضرورت۔ انجیکشن کی ضرورت نہیں ہے، باقی جو دوائیاں ڈاکٹر نے دی ہیں سکون نہیں کر رہی تھی نا، روئی جا رہی تھی بتا رہی تھی ادھر ہم بار بار باتیں کرتے گئے، وہ روتی گئی روتی گئی۔ نہیں تو دیے تھے مال کے بندر ادھر نہیں پہ آتی تھی میری گاڑی ادھر بھی نہیں آتی تھی۔ چلے صبر کریں انشاءاللہ، ہم کوشش کر رہے ہیں اور لے آئیں گے انشاءاللہ، رونق پھر آ جائے گی۔ نہیں دکھ ہوتا ہے، امی کیا کہتی تھی کدھر جائے گھر کا دودھ نکال کے نا، ارے امی کیا کہیں گے؟ نہیں شام ہو رہی ہے، زیادہ آپ ہی بڑے ہیں، سنبھالیں بچوں کو، وہ دیکھیں۔ پانی پانی پیا بھابھی۔ کہ جو نصیب میں تھا آپ نے بھی صبر کرنے ہے، اور اپنے بچوں کی طرح پالا، رات دن خدمت کی ہے، رات کے تک چاہے 3 بجے بھی اٹھ کر اسے جی افسوس کرنا بھی چاہیے، لیکن اتنا نہیں رونا چاہیے جیسے ہماری امی صوبیہ غوثر صبح سے رو رہی ہیں۔ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یار بات یہ ہے کہ میرا ہاں جی السلام علیکم بھائی، وعلیکم السلام۔ سنا حال حوال؟ حال یار آپ کے سامنے ہے، سب پریشان ہیں، رو رہے ہیں، ان کو تسلی دے رہے ہیں۔ ہاں میں بھی صبر کا کہہ رہا ہوں، اللہ پاک صبر دے، کہ آمین۔ جو نصیب میں تھا آپ نے بھی صبر کرنے ہے۔ اور السلام علیکم ابو، وعلیکم السلام۔ افسوس ہوا بہت گائے ہماری۔ ہاں یار افسوس تو ہوتا ہے، لازمی بات ہے، جو بچپن سے جس چیز کو پالا جائے نا وہ اولاد کی طرح پیاری ہوتی ہے۔ بہت افسوس ہوا کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کا ایک کھلونا بنا ہوا تھا، دودھ وغیرہ بھی دیتی تھی تو جو بچے خوش تھے، کھاتے پیتے تھے، لسی پیتے تھے، جو بھی سلسلہ تھا چل رہا تھا، اللہ پاک کرم کرے۔ باقی افسوس تو ہوتا ہے لیکن اللہ کی رضا میں راضی بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کی دین ہے، اللہ پاک ہی دیتا ہے اور وہی لیتا ہے، حلال رزق ہے جو اللہ پاک اور دے دے گا۔ جی صبر کا پھل میٹھا ہوتا صبر ہے۔ کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ باقی افسوس بہت ہوا ہے، ہماری تو آنکھوں سے آنسو بھی نہیں رکتے۔ بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے گھر کا کوئی افراد چلا گیا ہو، ایسے ایسے ہی محسوس اتنا ہوتا خلا نظر آ رہا ہے نا آج گھر میں، جب دیکھتے ہیں ادھر گائے نہیں ہے تو اب ایسا لگتا ہے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں۔ کتنی خوشی سے ہمیں دودھ نکالا کرتے تھے، ہم دکھاتے تھے، اب وہ نہیں رہی، کتنا دل پر چوٹ سی لگی ہے۔ سب سے زیادہ افسوس جو ہے نا وہ اب تمہاری امی کو ہوا ہے، کیونکہ اسی نے پالا ہے اپنے بچوں کی طرح اسے۔ میں تو ادھر ادھر کام پہ رہتا تھا، آپ بھی لاہور ہوتے تھے، لیکن اس نے نا اپنے بچوں کی طرح پالا، رات دن خدمت کی ہے، رات کے تک چاہے 3 بجے بھی اٹھ کر اسے کھلاتی تھی پلاتی تھی، گھاس ڈالتی تھی، خدمت کی ہے ماشاءاللہ، اچھی بڑی ہوئی ہے، دودھ بھی دیا، بچے بھی دیے، تو اسے بہت زیادہ افسوس ہے۔ اسے تسلی دیں کیونکہ وہ رو رہی ہے صبح سے، اور اسے کہیں کہ اللہ کی رضا میں راضی ہو۔ دیکھے نا عرفان بھائی، ہم نے 2-3 دن جو گھاس کرنا چھوڑ دیا تھا کپاس سے، لیکن دور تھا، امی پھر بھی جاتی تھی، کیا ہے کہ وہ نہیں دیکھ پاتی جی تھی ہمیں، وہ آپ نے ابو بتا رہے تھے جہاں سے بھی لے کر آتی تھی کہ گھاس۔ خود اگر بھوکی سونا پڑے تو سو جاتی تھی، ہاں لیکن وہ یہی کہتی تھی کہ اگر مجھے بھوکا سونا پڑے میں سو جاؤں گی، لیکن اپنے جانوروں کو نا بھوکا نہیں رکھوں گی۔ جب جانور بھوکے ہوتے ہیں تو بندے کا خود بھی من نہیں کرتا ہے کہ کوئی چیز کھائیں، کیونکہ جانور کو دیکھ کر نا افسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے سنبھالا ہے تو اللہ پاک اور دے دے گا، دعا کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک جلد انشاءاللہ۔ سے جلد۔ باقی کہتے ہیں کہ جانور کا افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ افسوس تو لازمی ہوتا ہے بیٹا جی، افسوس کرنا بھی چاہیے لیکن اتنا نہیں رونا چاہیے جیسے ہماری امی صوبیہ غوثر صبح سے رو رہی ہیں، جیسے ہی بیمار ہوئی ہے، وہ تو ویسے 3-4 دن سے بیمار تھی، وہ 2-3 ڈاکٹر بھی بلائے ہیں، انہوں نے چیک کیا، کسی نے کوئی دوائی دی، کسی نے کوئی دوائی دی، کوئی کچھ بیماری بتاتا تھا، کوئی کچھ بتاتا تھا، کسی کو پتہ نہیں چلا، پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا۔ تو آج وہ ڈرپ وغیرہ بھی لگوائی ہیں، آج تو کافی سارا خرچہ بھی کیا ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، بس باقی اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے انسان کو۔ ہاں جی افسوس اس چیز کا زیادہ ہوتا اگر ہم اس کا علاج نہ کرتے، ہم اس کے لیے کوئی علاج نہ کرتے، اس کا دوائی نہ لیتے، ڈاکٹر کو نہ بلاتے۔ ہم نے یہ 3 دنوں میں نا 3 بار ڈاکٹروں کو بلایا،
एक डॉक्टर से आराम नहीं आ रहा था तो दूसरे को बुलाया, उसने ड्रिप भी लगाई, दवाइयाँ भी दी, दे के गया, इंजेक्शन भी लगाए, फिर वहाँ गए उनके घर से स्टोर से, वहाँ दवा ड्रिपें ले आए, वह भी लगाई। यही कोशिश होती है इंसान की, इंसान तो कोशिश ही कर सकता है, बाकी अल्लाह की मर्जी। इंसान बेबस है। बाकी अफसोस की बात कर रहे हैं कि अफसोस होता है, हर इंसान को होता है। जैसे कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दे रहे थे। हाँ, वो मैं बता रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने बेटे से नवाजा था, तो वो 1 महीने का हो के ना, तो अल्लाह पाक ने फिर संभाल लिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गोद में उठाया हुआ था ना, तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो सहाबा कराम ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, आप तो पूरी उम्मत को ये सबक देते हैं, ये दर्स देते हैं कि रोना नहीं है, जो भी दुनिया से चला जाए उसके लिए रोना नहीं है, तो आप क्यों रो रहे हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यार, बात यह है कि मेरा दिल, मैं अल्लाह की रज़ा पे राज़ी है, लेकिन ये मेरी जो आँखें हैं ये नहीं रह सकती, आँखें जो है बरस रही हैं। लेकिन अफसोस तो होता है ना, इसी बात को देखा जाए कि हर चीज़ का अफसोस होता है। मौत का, जिस घर में मौत आ जाए, कि जानवर पे हो चाहे बंदे पे हो, अफसोस तो लाजमी चीज़ है ना, अफसोस तो होता है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक और फुर्सत देगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द कहीं ले आएंगे। मेरा यही आपसे मशवरा है, फरमान है, आप हैं, बाकी है बचत करें, जितनी हो सके बचत करें, ताकि हम जल्द से जल्द कोई और दूध वाली गाय लेके आएँ, ताकि उसका खला पूरा हो, घर में रौनक फिर बन जाए, और तुम्हारी अम्मी का भी दिल बहल जाए, और दूध वगैरह भी घर का बन जाए। क्योंकि वो जो ख़रीदने वाला दूध होता है ना, वो सही नहीं होता, दूध सही नहीं होता, और इतना महंगा है कि 2-3 किलो जितना गाय देती थी, हम 2-3 किलो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं डेली का, हमारी इतनी फुर्सत नहीं है। तो लिहाजा आप थोड़ी थोड़ी बचत करके ना, तो कोशिश करें, चाहे यार बड़ी गाय ना सही, छोटी से ही कोई दूध वाली, किलो 2 किलो दूध देने वाली वो लेके आएंगे, तो इंशाल्लाह सब राज़ी हो जाएंगे। जी, हमारी तो कोशिश यही है, इंशाल्लाह ले आएंगे। बाकी आप सब्र करें, और अम्मी को मैं बोलता हूँ हाँ, उनसे अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहें। कौसर भी रो रही है, सोबिया भी रो रही है, सुबह से ना कुछ खाया है ना पिया है, ऐसे ही बैठी हैं, तो उन्हें सब्र दिलाएं। और खाना पीना छोड़ देने से बस कुछ नहीं होता है, अल्लाह पाक राज़ी नहीं होता। अल्लाह पाक को राज़ी करें सब्र करके, तो दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें और जल्द से जल्द गाइड। इंशाल्लाह चलो, परेशान नहीं होना, बस जानवर आने जाने वाली चीज़ है, इसमें बंदा जानवर तो हैं, एक बंदा बेच भी देता है ज़रूरत के वक्त, बीमारी भी आ जाती है, कोई बकरियां हैं मर जाती हैं, हलाक हो जाती हैं, ये भी हलाल हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह का शुक्र है कि हलाल माल था, हलाल हो गई, मालिक के सुपुर्द कर दी। क्योंकि सुबह खुद भी आया था मालिक, उसने भी अब वो हालत देखी है, डॉक्टर के लेके आया था, तो हालत देख के गया था। जब मैंने फ़ोन किया तो उसने यही बोला कि यार अफसोस हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे लग तो रहा था कि बीमार काफ़ी थी। कोई बात नहीं, अगर हो गया ऐसा तो कोई मसला नहीं है। हाँ, वो भी अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हैं। उसने यही कहा कि यार वो ये गोश्त जो है ना, ये हम घर में खाने को दिल ही नहीं करता है। क्योंकि उसने ये कहा है कि जो मैं कसाई को दे रहा हूँ, आप जो भी तय कर लें उनसे भी किलो 2 किलो गोश्त जितना भी आप ले। मैंने कहा नहीं, कोई शायद नहीं, हमारा दिल ही नहीं करता है खाने को, तो ऐसे लेके क्या करेंगे। अफसोस होता है। तो अब आपकी चीज़ है, आप अपने ले जाएं, क्योंकि हमने तो ना कोई उसके हिस्से के पैसे दिए थे ना कुछ। उसकी मेहरबानी है कि 3-4 साल से वो हमारे पास खड़ी थी, बच्चे भी दे रही थी, दूध भी दे रही थी, उसने कभी आके देखा भी नहीं है। इतने बहुत अच्छे हैं वो माशाल्लाह। तो अल्लाह पाक उन्हें भी सब्र तहम्मुल अता फरमाए और औरत के अता फरमाए। आमीन। चलें, सही है, मैं हमें को सब्र करो। हाँ, उनसे बात करें, उन्हें सब्र दिलाएं, हौसला दें, और यही कहें कि हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द, जितनी जल्दी मुमकिन हो सकेगा, हम और गाय लेकर आपके सामने खड़ी कर लेंगे। इंशाल्लाह हम बचत करेंगे, और पूरी बचत करके हम दूध वाली ना गाय ले आएंगे जैसे। इंशाल्लाह चलें जी, ओके। तसल्ली दें, ताकि हम जल्द से जल्द कोशिश करें, या किसी से थोड़ी बहुत उधार भी रखा के ना कुछ भी करके ना, मैं तो लेके आऊँगा और इंशाल्लाह सब कुछ दिखा देंगे। कि दूध के बगैर तो गुजारा नहीं है, दूध की सख्त ज़रूरत है हमारे घर में। दूध बच्चों के लिए लाजमी होता है, क्योंकि हमारे घर में एक कमज़ोरी है, बच्चे कमज़ोर हैं सारे, ये दूध पीते हैं तो चलो कुछ सेहत बनी रहती है, तो इसीलिए दूध लाजमी है। चलो इंशाल्लाह जल्दी ले आएंगे अपने घर। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अफसोस हुआ, हमारी गाय जो है बेचारी हलाल हो गई,
हमें तो बहुत अफसोस है, आपको भी सब्र रखना चाहिए, सुबह से रोए जा तो रही है। अफसोस की बात है, मैं तो दिए थे माल के बंदरों तो नहीं पे हटती, मेरे गाने घर भी नहीं आते। मैंने हौसला करें, कौशल आप ही संभाल सकती है, आप हिम्मत वाली हैं, आप भी रोने लग जाती हैं। आप सारे पूरे घर का श्रृंगार है गम। हम कोशिश कर रहे हैं, अब अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। बंदे के बस में तो कुछ नहीं होता, जो चीज़ जाने थी वो तो चली गई। सारे जानवर बंदे में कोई भी नहीं खाता पीता नहीं, सब उदास है उसके गांव की वजह से। चले सब्र करें, इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं और ले आएंगे इंशाल्लाह, रौनक फिर आ जाएगी। बाकी आप भी समझदार हैं, कौशल आप भी ना रोएं, चुप हो जाएं भाभी, समझदार हैं आप सब, क्योंकि एक चीज़ जो नसीब में लिखा था हो गया, और जिसकी मौत आनी है वो तो बरहक है, मतलब कि उसी वक्त, मतलब एक मिनट भी ऊपर नीचे नहीं होगा। वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, जिसकी लिखी है उसको मिल जाती है। बस वो तो कोई गाल नहीं, अल्लाह का रिज़्क़ है, माल है, अल्लाह ताला खबर है साकू कब संभालेगा, कोई भरोसा है जिंदगी का, कोई भरोसा का नहीं। बाकी हौसला करें इंशाल्लाह। जिंदगी अल्लाह से बनाई है, बस अचानक पता ही नहीं लगा। जानवर हैं, जानवर आने जाने की चीज़ है, उस पर कोई इतना काम होते ना कुछ बोलने वाला ना कोई दसने वाला ना, इंसान तो नहीं बोले बतावे मारा से सही को तो तकलीफ है, कुर्रे ना बीमारी है। हम्म, है तो गो गदाम जानवर मारा से उन्हें रहती। क्या पता तकलीफ दा क्या उन्हें अंदर होगा, ये तो कोई नहीं जानता। बस इलाज होंगे शफा होने जिन्हें तो शफा थी गई तो थी गई, नहीं तो पीछे। हाँ, क्योंकि ज़्यादा अफसोस जो है ना इस बात पे होता है कि एक तो वो बेज़ुबान जानवर होते हैं, ज़्यादा तकलीफ वही होती है कि वो अगर बोल सकते हैं तो हम शायद उनकी सुन सकते हैं। कुछ बता सकते बोल सकते तो हम बीमारी का पता चल जाता। बस ज़्यादा अफसोस जो है उनकी बेज़ुबानी पर है, वो बेचारे। जानवर पे जो मौत आती है ना, वो बुजुर्ग कहते हैं कि ये घर में इंसानों के सर का सदका होता है, जो जानवर अपने ज़िंदगी पे लगा लेता है, अपने गले लगा लेता है। कोई बलाएं ऐसी होती हैं जो घर में पता नहीं होती है, तो इनसे जानवर के ज़रिए ही टाल जाती हैं। तो ये सर का सदका ही समझ लें, सब्र कर लें। मतलब वो हमारे जगह वो अपने मतलब के कर लेती हैं। दुख तकलीफ़ें बीमारियां जो भी बलाएं मुसीबतें आने होती हैं ना घर में, तो वो जानवर के ज़रिए ही, किसी न किसी चीज़ के ज़रिए ही वो डाल जाती हैं। अच्छा, मतलब कि उसने अपने सर ले ली हाँ, जो अपने आफत सार वो आनी थी। मुसीबतें अपने सार लेके वो चली गई, अल्लाह पाक ने बंदों को महफूज रखा। ये भी अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। जी, फिर भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह पाक का। जो हो गया वो तो अल्लाह पाक को पता है, बेहतर जानता है अल्लाह पाक। बाकी हम तो राज़ी हैं, आप भी सब्र कर लें, अल्लाह पाक की रज़ा पे राज़ी रहें, आप भी ना रोएं और आप भी ना रोएं। हाँ, अफसोस होता है, 2-4 घंटों का होता है, क्योंकि पूरा दिन रोना, ये जानवर पे इतना। बाकी दिल में जो है ना, दिल में दुख होता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। ठीक है, सब्र रखें, इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। अब उन्हें बताया है कि हम जल्द जो है ना दूध वाले के यहाँ ले आएंगे, दूध की जो है आपको पता है सख्त ज़रूरत होती है। अल्लाह पाक आपको सब्र दे, और आपने संभालना है अम्मी को, सुबह से ना कुछ खा रही है ना पी रही है। यार जब खुद रो रही हैं अम्मी को क्या तसल्ली देंगे, हम सबको कह रहे हैं यार रोए ना। हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ कि आपने बड़ों को संभालना है। हाँ अब आप भी रोने लग जाएंगे तो कौन संभालेगा इस घर में। ठीक है, रो मत, और अम्मी को तसल्ली दो, कोई बात नहीं, ले आएंगे दूध वाली गाय ले आएंगे। आपको ये महसूस भी नहीं होगा कि हमारी गाय इस दुनिया से चली गई है या है। वो देखे फिर से रोने लग गई। कैसे सब्र करें, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहें, इतना नहीं रोना चाहिए, अल्लाह पाक नाराज़ हो जाता है। बोलें, बात करें, दिल का बोझ हल्का होता है। ऐसे रोने से अपना नहीं, दुख सुनाएं। दुख सुनाएंगे, बात करेंगे, दिल का बोझ हल्का होगा। अल्लाह पाक की चीज़ थी, उसने संभाल ली, अब अल्लाह पाक और भी दे देता है। सब्र करें, और जो आपके दिल पे बोझ है वो कोई बात कर लें, बोझ हल्का हो जाएगा। इधर देखें, कुछ बोल दें।
नहीं दुख होता है। अम्मी क्या कहती थी, कौन जाए गाय का दूध निकाल के ना। अरे अम्मी क्या खाएगी आज कहाँ जाएंगे गाय का दूध निकालने। सब्र करें, सब्र रखें। कहाँ से सुबह पानी पिला के आए, गाय का दूध निकाल कर आए। कोई नहीं हौसला रखें, इंशाल्लाह ऐसे ही दूसरी गाय हम ले आएंगे, फिर से वही बातें होंगी इंशाल्लाह। फिर दूध निकालेंगे, फिर रौनकें होंगी। अब सब्र तो करें। ये ऐसा तो नहीं कि इंसान तो नहीं कि एक बार चला गया, गाय है वो और ले आते हैं घर में। हाँ जी गाय जानवरों का तो हर घर में घर उनका बन जाता है। जी। वो जिस घर में ले जाओ वो वहाँ ठहर जाते हैं, पक्के हो जाते हैं, उनको पता है अब हमारा यही घर है। इंसान होता है, अगर फैमिली से कोई फाद फौत हो जाता है वो दोबारा नहीं आ सकता, किसी और को भी नहीं ले आ सकते हम। जानवर है, आ जाएगा, ये चली गई गाय तो इंशाल्लाह सब्र और ले आएंगे हमें। नहीं, शाम हो रही है, ज्यादा आप ही बड़े हैं, संभालें बच्चों को। वो देखें, शाम के टाइम नहीं रोते। वो भी ओए पानी ले आ यार। कह रहे हैं कौशल संभालें खुद को। मैंने पहले भी बोला है, इतना अफसोस ना करें। वो दिल को लगा गई यार पानी बात। पानी ले आओ जल्दी से। चल मुनीब, ना करो नहीं बेटा नहीं। सुबह इधर हो जाओ आप भाभी। मुंह पकड़ो। पानी पानी पियो भाभी। पानी पी लो पानी। मैंने कहा ना दिल पे ना ले, फिर से दिल पे ले तो गई। कह रहा हूँ ना दिल पे बोझ है, बोलती भी कुछ नहीं थी, ऐसे रो रही थी। बस वो एक बात की है, वो आप ज्यादा ही ना रहे। दिल फट गया। सुला दो सीधा सीधा। सुबह आप इधर हो पकड़ो इसे, नीचे सीधा करो। सीधा करो। सिराना ले आ यार। अब रोने से कुछ नहीं होगा। रोने से कोई बंदा, जानवर कोई बंदा कोई वापस थोड़ी आ जाता है। सब्र होना चाहिए इंसान में। बाकी इसको कौशल को संभालना चले, खैर है। हाँ जी अबू, सुनाए आप तबीयत का। बस पहले जैसे कर रही थी ना वैसे तो नहीं कर रही है, अभी सुकून में आ गई है। मैं तो ये कहता हूँ कि इसे सोने दें, जब रेस्ट करेगी उठेगी घंटे बाद, फिर 2 घंटे बाद फिर इंशाल्लाह ठीक होगी। हाँ, वो इंजेक्शन आपने वो बोले ले थे, आए, वो रखे। वो सुकून नहीं कर रही थी ना, इंजेक्शन ले आया। चलो आप तो सुकून है, आप तो नहीं इसकी वो जरूरत। इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो दवाइयाँ डॉक्टर ने दी हैं ये तो पिलानी ये पड़ेंगी। पिलाने पड़ेंगे और ये टैबलेट भी है वो खिलाने पड़ेंगे। इंजेक्शन ला के देते हैं वक्त पर। हाँ फिलहाल इंजेक्शन जो पिला है कलाम पड़ा है तो दम किया है ना दम किया है मौलवी साहब ने, फरमान भाई ने। चलो मसला, हाँ वो कहते हैं ना कुछ दुआ कुछ हाँ दवा। वो उसी फिर ना सुकून आ गया है। अभी कोई बात ना करें, उसे कुछ भी ना करें, सोने दें। फिर इंशाल्लाह आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद जब उठेगी तो कुछ बेहतर होगी। इंजेक्शन ना लगा रहने दो। फर्जी दवाई की जरूरत होगी फिर चले ये रख दे अभी फिलहाल। फिर डॉक्टर से पूछ लेंगे कि वो इंजेक्शन लगाने हैं या नहीं लगाने हैं बाद में। हाँ, उन्होंने बोला कुछ। हमने तो यही कहा ना कि सुकून नहीं कर रही थी ना, रोई जा रही थी। और फिर बता रही थी इधर हमें डाल दो। तो उसको होता है, हाँ मैंने इधर साइड में ना पासे में डाल देता है। अक्सर जब रोते हैं ऐसा। वो दबाया ना, तुम्हारी अम्मी ने दबाती रही है, फिर वो कुछ सुकून में आ गई है, वो दम भी किया। सुकून है तो फिर रहने दे अभी बाद में। चले अब कौशल की हालत आपके सामने है और दुआ करने हैं बहन भाइयों के कौशल जो है जल्द से एहतियात हो जाए। ऐसे ही सदमा लगा रोते रोते आपके सामने उसने बात जो है दिल पे ले लिया गया वाली। मैंने बोला भी है कि सब्र रखें, लेकिन असल में ना इरफान भी गलती हमारी है। हम बार बार बातें करते गए, वो रोती गई वो कह रहे थे हम बातें हमारा ज़्यादा तो ना हक है कि सब्र देना हमारा भी फर्ज है। वो रो रही थी तो हम उसे सब्र दिला रहे थे, कह रहे थे कि रोना नहीं है। बातों बातों में चलो भी कुछ दिल हल्का हो जाए, इसीलिए हम कह रहे कुछ थे। बोलेंगे, कुछ बातें दिल हल्का होगा, लेकिन वो बोलते बोलते ही आपके वो स्ट्रेस सामने ले गिरी गई, है। परेशानी टेंशन ले गई, तो फिर तो अल्लाह पाक मेहरबानी करेगा। क्या दुआ की अभी एक और बड़ी परेशानी फिर है, अल्लाह पाक बेहतर जानता है। चलें जी, अब हम इनका ख्याल करते हैं, दुआ करें जल्दी होश आ जाए। हाँ, सब बहन भाई दुआ करें हमारे लिए, सबसे गुजारिश है। हमारे घर के हालात आजकल जो है ना पता क्या हो गया खराब हो हमारे रहे घर को, हैं। कोई समझ नहीं आती। पता कैसा दिन था, सुबह से उठे थे परेशानी तो परेशानी।
तो पैसा भी नहीं है। आज तो खुशी का दिन होने वाला था, अम्मी और अबू कहीं जाना था, सरप्राइज थे, वो भी रह गए और अचानक से चलो जो दोस्त आ खुदा गए। को मंजूर, इंशाल्लाह खुशियाँ भी आएंगे, दुआ करें। अल्लाह पाक जब आजमाइश ये लेता है ना, अल्लाह पाक की आजमाइश होती है, ये दुख सुख जो होते हैं ना अल्लाह पाक की आजमाइश होते हैं। हाँ जी। अल्लाह पाक की रज़ा में राज़ी हूँ ना, भी अल्लाह खुश होता है यार मेरी रज़ा में वो राज़ी है। जी जी, तो बस अल्लाह करम करेगा, बस दुआ करें असर के लिए जल्द से जल्द ठीक हो जाए, फिर खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम गाय भी ले आएंगे और कसर को जाए, अल्लाह पाक जल्द शिफा कामला अता और फरमाए। मैं ये बात सबको कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि अब गाय का जिक्र या रोना धोना ये नहीं करना है, मेहरबानी करें, क्योंकि उसकी तबीयत पहले भी ऐसी हो चुकी है, फिर बाद में कोई ऐसी बात हो फिर हो जाए तो अल्लाह करम करे। रोना धोना नहीं है, बस आपने सब्र रखना है। चलें जी, सही है।